Today we solve the Lagrange's linear equations numerical. Okay, so Lagrange's equation are of type capital P into small p plus capital Q into small q equal to R. Then its auxiliary equations are dx over capital P equal to dy over capital Q equal to dz over capital R. And we solve the equation by using multipliers or by just solving them any two of them each solution. If one solution is like this, another solution is like this, then we can write the whole solution like this, or u is equals to phi of v, or v is equals to phi of u, whatever. All the three solutions are right. So we will do the numerical one by one. I start my numerical first as number 1. Solve the following partial differential equation. Number 1 is yq minus xp is equals to z. So as you can see that it is in the form of p small p capital P plus small q into capital Q is equals to z. So when we compare it, we get capital P equal to minus x, capital Q is equals to y, and capital R equal to z. Then its auxiliary equations are dx over minus x, dy over y, dz over z. Now if we take these two equations, that is dx over minus x equal to dy over y, we get minus log x equal to log y plus log c. Then we have equation minus log x equal to log yc, and c is equals to minus of x upon y. Okay, or you can solve also this by this method. If you want this, you can write here minus log c, and you can write that log c here and xy there. Log c is equals to log x plus log y, or log c is equals to log xy. Cancel, c is equals to xy. You get one solution is like this. And if we take these two equations, dy over y equal to dz over z, then we have the solution as log y equal to log z plus log c 1. So c1 can be written as y upon z. The total solution can be written as f of xy comma y upon z equal to 0. This is the answer. This is your first solution, this is your second solution. I take first and second equation, then second and third equation. You can also take first and third equation. Whatever you like, you can take here. Okay. So this is our first numerical. Now we will solve the second numerical as second one is y square p minus xyq equal to x z minus 2y. Okay, so as we can see that this is also in the form of small p into capital P plus small q into capital Q equal to R. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो. यहाँ पर आपने अगर कंपेयर किया, यू गेट कैपिटल P इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, कैपिटल Q इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, एंड कैपिटल R इज इक्वल्स टू x into z minus 2y. Then the auxiliary equations are dx over y square, dy over minus xy, dz over x into z minus 2y. Now if we take two equation, that is dx over y square equal to dy over minus xy, then we have dx over y equal to dy over minus x, then we have minus x dx
इक्वल टू वाई डी वाई. ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर सॉरी इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस हमने ले लिया c1 बाय 2. तो आपको c1 की वैल्यू मिल गई माइनस एक्स स्क्वायर, या आप इसको माइनस में ले लीजिए. आप जब इसको माइनस में ले लेंगे तो c1 की वैल्यू हमें मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. 2 तो कैंसिल आउट हो गए सब में से, तो आपको मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक सोल्यूशन तो आपका ये हो गया. ठीक है, अब आपने दूसरा सोल्यूशन लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ले लो. कंसिडर दीज टू इक्वेशन. तो ये आ जाएगा आपका डी वाई ओवर माइनस एक्स वाई इक्वल टू डी जेड ओवर एक्स जेड माइनस 2y. आपने ये इक्वेशन ले ली, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये इक्वेशन आ गई डी वाई ओवर माइनस वाई इक्वल टू डी जेड ओवर जेड माइनस 2y. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो z माइनस 2y डी वाई इक्वल टू माइनस वाई डी जेड. तो ये इक्वेशन आ गई आपकी z डी वाई माइनस 2y डी वाई इक्वल टू माइनस वाई डी जेड. आप इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी z डी वाई प्लस वाई डी जेड इक्वल टू 2y डी वाई. ऑन इंटीग्रेटिंग यू गेट, अच्छा उससे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों टर्म को हम लिख सकते हैं डी ऑफ वाई जेड इक्वल टू 2y डी वाई. अब आप इंटीग्रेट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका वाई जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस c2. तो c2 की वैल्यू मिल गई हमें वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर, और आप c2 इधर ले लेते हो तो आपको मिल जाती वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड. तो आपको टोटल सोल्यूशन आ गया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इज द आंसर. ठीक है, this is your second question. Now we will write the third question. Now the next numerical, third numerical is x square minus yz into p plus y square minus zx into q equal to z square minus xy. ठीक है, तो ये भी आपका लेग्रांजेस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, जहाँ कैपिटल P की वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, कैपिटल Q की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, एंड कैपिटल R की वैल्यू है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई. ठीक है, तो हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू डी वाई ओवर वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इक्वल टू डी जेड ओवर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई. ठीक है, तो अब हम ये देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है हमारा, अब हम इसको अलग अलग करके नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस में सभी में है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है ये आपका एक चेन फॉर्म में है. तो चेन फॉर्म में है, तो चेन फॉर्म के लिए हम भी एक चेन फॉर्म करेंगे, दैट इज हम करेंगे डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड इक्वल टू डी जेड माइनस डी एक्स. तो अपॉन में वही आ जाएगा डी एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस डी वाई यानी माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, डी वाई ओवर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये भी प्लस में आएगा, और ये आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड. ठीक है, तो आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई, और इन दोनों में से आप z कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख लीजिए, और इन दोनों में से आपने z कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस वाई. सिमिलरली डी वाई माइनस डी जेड में आप वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को लिख लो y प्लस जेड वाई माइनस जेड. ठीक है, और इसमें से आप क्या कॉमन ले लो x, इन दोनों में से आपने x कॉमन ले लिया तो आपका आ गया y माइनस जेड. सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा डी जेड माइनस डी एक्स में आप जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स लिख लो, और इन दोनों में से आप कॉमन ले लो y,
तो y कॉमन ले लोगे तो क्या आ गया ब्रैकेट में, z माइनस एक्स। ठीक है, तो इन दोनों ब्रैकेट में से आप x माइनस वाई कॉमन ले लिए, यहाँ y माइनस जेड ले लीजिए, यहाँ z माइनस एक्स ले लीजिए। तो आपकी इक्वेशन आ गई dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई कॉमन ले लिया मैंने, तो x प्लस वाई प्लस जेड है ना। देखो x प्लस वाई प्लस बचा, यहाँ से z, dy माइनस डी जेड ले लिया, यहाँ मैंने y माइनस जेड कॉमन ले लिया, तो बचा x प्लस वाई प्लस जेड। अगेन देखो y प्लस जेड प्लस एक्स, तो मैंने x प्लस वाई प्लस जेड लिख लिया। डी जेड माइनस डी एक्स लिख लिया, यहाँ से मैंने z माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो फिर से बचा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो देखिए तीनों ब्रैकेट में से ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम कोई भी ले लें, जैसे हमने ये दो ले लिए, ये दो लिए, यानी डी एक्स माइनस डी वाई ओवर एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड ओवर वाई माइनस जेड ले लिया। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया लॉग एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग वाई माइनस जेड प्लस लॉग सी वन। तो सी वन की वैल्यू आ गई मेरी एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड। ऐसे ही हमने ये दोनों ले लिए जब, तो क्या आ जाएगा डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू डी जेड माइनस डी एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स। आपने इंटीग्रेट किया तो आ गया लॉग वाई माइनस जेड इक्वल टू लॉग जेड माइनस एक्स प्लस लॉग सी टू। तो यहाँ से आपकी सी टू की वैल्यू आ गई वाई माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स। तो टोटल सोल्यूशन आपका आ गया, यहाँ जगह नहीं बची है तो टोटल सोल्यूशन मैं यहाँ लिख रही हूँ एफ ऑफ, पहला ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड कॉमा वाई माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। तो मैंने जैसे सेकेंड और थर्ड लिया है, आप फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं, तो आपका आंसर दूसरा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। मतलब अब हमें इक्वेशन ऐसी होगी जो ऐसे सिंपली सॉल्व नहीं हो रही होगी, कुछ ना कुछ मल्टीप्लायर से सॉल्व होगी। ठीक है, तो जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, सॉल्व एम जेड माइनस एन वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस एन एक्स माइनस एल जेड डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू एल वाई माइनस एम एक्स। ठीक है, तो ये तो आपको पता है डेल जेड ओवर डेल एक्स मतलब क्या है, स्मॉल पी है, और डेल जेड ओवर डेल वाई क्या है, मतलब स्मॉल क्यू है। तो हमें पता चल गया कि कैपिटल पी की वैल्यू ये, कैपिटल क्यू की वैल्यू ये कैपिटल आर की वैल्यू है। तो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली, डी एक्स ओवर एम जेड माइनस एन वाई इक्वल टू डी वाई ओवर एन एक्स माइनस एल जेड इक्वल टू डी जेड ओवर एल वाई माइनस एम एक्स। ठीक है, अब हम कैसे भी सॉल्व करें ये सॉल्व नहीं होगा, डी एक्स माइनस डी वाई करके भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इसमें स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो वी हैव टू यूज़ दी मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर जनरली इसी टाइप के होते हैं, जैसे हमने एक मल्टीप्लायर ले लिया, इसमें फर्स्ट वी टेक एक्स वाई जेड, मतलब हमने क्या किया, x को इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, y को इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा और z को इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स इंटू एम जेड माइनस एन वाई प्लस y इंटू एन एक्स माइनस एल जेड प्लस z इंटू एल वाई माइनस एम एक्स। ठीक है, तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन, हमने लिखा ये आ गया एक्स एम जेड माइनस एन एक्स वाई, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ एम एक्स जेड। ठीक है, एम एक्स जेड माइनस एन एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई माइनस एल वाई जेड प्लस एल वाई जेड
माइनस एम एक्स जेड। ठीक है, तो देखो एम एक्स जेड और एम माइनस एम एक्स जेड कट गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ये और ये कैंसिल आउट हो गए। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू अपॉन ज़ीरो इम्प्लाइज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू ज़ीरो। ऑन इंटीग्रेशन हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई हमें ऐसे चूज करने हैं कि डिनोमीटर हमारा ज़ीरो हो जाए। एनी हाउ हमें चूज करने हैं अगर हमारे पास मिल पा रहे हो। हर केस में नहीं मिलता, पर इस केस में हम देखेंगे कि हर केस में हम ट्राई करेंगे कि हमें मिल जाए। और मल्टीप्लायर एक ही दो टाइप के होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा कोई आता भी नहीं है। ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन किया हमने तो ये मिल गया हमें एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वाई स्क्वायर बाय टू प्लस जेड स्क्वायर बाय टू इक्वल टू C1 बाय टू। तो हमें C1 की वैल्यू मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक सोल्यूशन हमारा ये हो गया। अब हमने दूसरे मल्टीप्लायर इसमें ले लिए एल वाई और जेड। जब एल वाई जेड लिए तो हमारा आया ईच फ्रैक्शन इक्वल टू एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, यही आएगा अपॉन एल इंटू एम जेड माइनस एन वाई प्लस एम इंटू एन एक्स माइनस एल जेड प्लस एन इंटू एल वाई माइनस एम एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन ये आ गया एल एम जेड माइनस एल एन वाई प्लस एम एन एक्स माइनस एम एल जेड प्लस एन एल वाई माइनस एम एन एक्स। ठीक है, तो देखिए एल एन जेड और माइनस एम एल जेड, एल एन वाई और एन एल वाई और एम एन एक्स ज़ीरो आ गया। तो ये आ गया एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन ज़ीरो। इसने इम्प्लाई किया एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू सी। ये हमें मिला ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है, एक सोल्यूशन हमें मिल गया ये वाला। तो टोटल सोल्यूशन हमारा आ गया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू ज़ीरो। ये आ गया हमारा टोटल सोल्यूशन। दिस इज द आंसर। So this question is based only totally on the multiplier, use of multiplier। तो ऐसे ही सारे हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे एक के बाद एक। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे इसी पर बेस्ड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा x इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि ये वैल्यू जो होती है ये होती है स्मॉल p और इसकी जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल q। तो ये वैल्यू हो गई हमारी कैपिटल P की, ये वैल्यू हो गई हमारी कैपिटल Q की और ये हो गई हमारी कैपिटल R की। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई हमारी dx ओवर x जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy ओवर y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू dz ओवर z वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी भी हम इसको चेन फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि सारे ही स्क्वायर में है, तो चेन फॉर्म में लिखने का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि एक वेरिएबल भी मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो हम इसमें फिर से मल्टीप्लायर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन मल्टीप्लायर ले लेते हैं, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। टेकिंग द मल्टीप्लायर एक्स वाई एंड जेड, तो आ गया एक्स डी एक्स, सॉरी, तो आ जाएगा आपका ईच फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू ईच फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स
प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन, आपने x से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो देखिए ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, ये कट गई और ये कट गया, तो ये वैल्यू हो गई एक्स, ये आ गई एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन ज़ीरो, विच इम्प्लाइज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो ऑन इंटीग्रेशन आपको मिल गया, सिंपल मैं फिर से वैसे ही लिख देती हूँ, अब तो अलग अलग करके लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट भी हम C1 बाय 2 करेंगे तो अपॉन 2 सारे में से कट जाएगा। तो पहला सोल्यूशन हमें मिल गया ये वाला। ठीक है, अब हमने इसमें मल्टीप्लायर लिया, एक हमने लिया कि इन सबको ऐड कर देंगे तो ज़ीरो आ जाएंगे अगर इन लोग को हटा दें, तो मैंने अगला मल्टीप्लायर ले लिया एक्स, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड। तो आपका ईच फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस 1 अपॉन जेड डी जेड इक्वल टू, आपने 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रह गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी कट गया ये भी कट गया। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपका डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो ऑन इंटीग्रेशन हमें मिल गया लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड इक्वल टू लॉग सी टू। यहाँ से मिल गया सी टू इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। तो टोटल सोल्यूशन मिल गया हमें एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा एक्स वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग लिख रहे हैं 6th, वाई माइनस जेड अपॉन वाई जेड इंटू पी इक्वल टू जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, यहाँ इक्वल टू होते हैं प्लस जेड। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम जब पूरी इक्वेशन में एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई माइनस जेड इंटू स्मॉल पी प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स क्यू इक्वल टू जेड इंटू एक्स माइनस वाई। ये होगी कैपिटल पी की, ये होगी कैपिटल क्यू की, ये हो गई आर की। तो हमने अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली, डी एक्स ओवर एक्स वाई माइनस जेड प्लस इक्वल टू डी वाई ओवर वाई जेड माइनस एक्स इक्वल टू डी जेड ओवर जेड एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अभी हमने मल्टीप्लायर्स में ले लिया हमने 1 1 एंड 1। तो आपका आ गया ईच फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन एक्स वाई माइनस जेड एक्स
प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो देखिए एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। तो ये वैल्यू आ गई हमारी डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन ज़ीरो इम्प्लाइज डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू ज़ीरो। ऑन इंटीग्रेशन वी गेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1। एक सोल्यूशन हमें ये मिल गया। अगेन हम देखें, अगर हम इसको x से डिवाइड कर दें, y से डिवाइड कर दें, इसको z से डिवाइड कर दो, इन लोगों को ऐड करें तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो दूसरे मल्टीप्लायर हमने ले लिए ये वाले 1/x 1/y 1/z। आप देखोगे मल्टीप्लायर एक ही टाइप के होते हैं, उसी टाइप के हम लेते हैं और सॉल्व होता है। और जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी बेस पर आते हैं, इससे बाहर कोई नहीं आता। तो आपका आ जाएगा ईच फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z अपॉन y माइनस z प्लस z माइनस x प्लस x माइनस y। कैंसिल आउट हो गया। dx ओवर x प्लस dy ओवर y प्लस dz ओवर z अपॉन ज़ीरो। तो ये इम्प्लाई हुआ dx ओवर x प्लस dy ओवर y प्लस dz ओवर z इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। ऑन इंटीग्रेशन वी गेट log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू log c2 और c2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। ये सोल्यूशन सेकेंड आ गया। तो आपको टोटल सोल्यूशन आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज योर टोटल सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन। दिस इज द आंसर।